Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of second chapter, units and measurements. Today we are going to do derivation for this error, to estimate the error in some difference, then product, quotient and par cases. So suppose that when we are adding two quantities, then what will happen to the errors? When we are finding the difference between two quantities, what will happen to the error? And when we are multiplying or when we are dividing quantities or when you are taking the power of quantity, then what will be the impact? So the heading is, so estimate error in. So first we are finding for the sum, then we'll find out for the difference, and these topics are very important and very easy. With competitive point of view also it's very important. Then the next one, product. Then the fourth one, quotient. Then the division, and the last one, power or the power of any measured quantity to which you are measuring, and there is an issue or there is an error, and to that error how are we going to calculate that particular part we are going to learn in this derivation, and we will take one or two examples also along with that. So we'll see when we are over this sum part. So you imagine first point, measured value अगर मान लो a है, measured value a can be written as a plus minus delta a. What is that? A is true value in this case, correct? और ये क्या absolute error है. Absolute error in the sense true value के साथ में ये कितना difference रखता है, ये उसकी value की. If you remember na, last class we did, like if you are having x1, x2 and up to xn, then we found average value. So that was x1 plus x2 up to what? xn we obtained and then divided by n. So it was the true value. Then we found the absolute error. So where the absolute error was what? The difference between true value and measured value. So delta a is the difference between true value and measured value. So ये यहाँ पे होगा. So there is a possibility this can be greater or lesser. You must have seen we were getting positive also, we were getting negative also. So true value से measured value can be more also, can be less also. तो दोनों possibilities हैं. So that's not an issue. So अब क्या होता है कि ऐसे हमारे पे एक दूसरी क्वांटिटी है. So measured value b. आपने एक दूसरी वैल्यू पे मेजर कर लिया. Measured value जो है हमारा वो क्या है? b है. तो b का वैल्यू क्या है? वो हो गया b प्लस माइनस डेल्टा b. जहां पे b is true value and delta b is the absolute error. So question is sum of measured value क्या होगा फिर? Therefore sum of measured value तो measured value का sum कैसे निकालोगे? So that is very simple. मान लो measured value का sum जो होगा वो z होगा. That is what a plus b. So it's a measured value का sum. It's a measured value of a, measured value of b. So this z will remain z. This is what equation number 1. तो this if you are writing this z को, तो अभी आपको ना इस टर्म मिलेगा, जैसे आपने इनको लिखा है वैसे इसको भी लिखना है. तो measured value of z and this is what absolute error in z plus minus. Then this is the measured value. This is the this is the true value of z and this is the absolute error in z and this is the measured value. You imagine that way. अच्छा यहाँ पे एक इशू और भी हो सकता है कि जो नोटेशन हम लेते हैं ना, सिंबल जो लेते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट दैट्स नॉट ए इशू, वो चलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे a की वैल्यू होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, देन प्लस इज a प्लस माइनस डेल्टा b. सो पहले मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेता हूं. ये b था, सॉरी. तो आपने क्या किया, यहाँ पे a है, प्लस है, b है, साथ में ले लिया a प्लस b. अब क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा a, ये इसके सामने भी ट्रीट करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b. मैंने अभी इसको ओपन करके रख दिया. फिर ये क्या हो जाएगा, a प्लस b हो गया, एंड यू कैन टेक प्लस माइनस कॉमन. व्हेन यू टेक प्लस माइनस कॉमन इट विल बी व्हाट, प्लस ओनली. करेक्ट. व्हाट इज हैपनिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड?
तो लेफ्ट हैंड साइड का भी देख लो, ये z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू एक्चुअल में a प्लस बी है। आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z, करेक्ट। यहां पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z। एक्चुअल में देखो तो ये क्वांटिटीज क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो देन प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। प्लस माइनस हटा दो आप, तो क्या होगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अभी आप देख सकते हो कि जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उनका एरर क्या होगा, ऐड होगा। फाइन। सो अब हमें लेना है डिफरेंस के लिए। सो यहां पे क्या होगा, ये मेजर्ड वैल्यू ये भी आपने लिया है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। सो डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, तो डिफरेंस में हम क्या ले रहे हैं ना कि क्राइटेरिया वैसा ही होगा जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। ये हो गया मान लो a माइनस बी होगा, बट z का जो वैल्यू होगा इस टर्म में ना, ट्रू वैल्यूज है एब्सोल्यूट एरर के टर्म में, तो z का वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, a का ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, माइनस। अब क्या होता है कि जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, ठीक है वो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न तो वैसे होगा, थोड़ा सा वेरिएशन जो होगा हम देख लेंगे। ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं हटा देता हूं। सो इज इक्वल टू दिस a माइनस बी, करेक्ट, तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, ट्रू वैल्यूज को हमने साथ में ले लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये वैल्यू क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी लिया, अब प्लस माइनस को कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस है, ये भी एक हिसाब से प्लस माइनस ऐसा ही हो गया ना, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा, गॉट इट। और यहां पे क्या है, z की वैल्यू ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये क्या होगा, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z, ये होगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z। ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ये क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, उसके पहले क्या प्लस माइनस, दिस प्लस माइनस यू कैन रिमूव, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, गॉट इट। तो ये कंडीशन होगा। सो दिस इज द एरर। सो यू कैन सी ना, व्हेन वी एडेड थिंग्स ड्यूरिंग सम आल्सो एरर वे एडिंग, एंड ड्यूरिंग डिफरेंस आल्सो वी आर गोइंग टू ऐड द एरर। तो एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं, नो अदर ऑप्शन। सो एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। सो हमने कोई ऐसी सम टाइम व्हाट हैपेंस ना, दे विल नॉट मेंशन कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझनी पड़ती है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, मैं ये सम के हिसाब से ले रहा हूं, दे आर सेइंग कि R1 ये कोई रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है। सो उसका वैल्यू दिया है इन्होंने 20 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज ओम, एंड R2 इज द सेकेंड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है 40 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट हमने अब तक डिस्कस किया था वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। तो हमको पता है सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, RS is equal to first resistance plus second resistance. Just you write down their values. R1 का वैल्यू क्या है 20 प्लस माइनस 2 है, इन प्लस 40 प्लस माइनस 3। तो अगर आप वैसे उसी फॉर्मेट में लेना है तो ये जो ट्रू वैल्यूज है, तो ट्रू वैल्यूज क्या हो गए 20 प्लस 40 हो गया, ठीक है। मान लो आप कंफ्यूज हो तो कोई इशू नहीं है, उसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो प्लस माइनस 3। तो यार डायरेक्टली लिखोगे तो बेहतर है, बट अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो आप क्या प्लस माइनस को आपने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या होगा 2 प्लस 3, तब ये वैल्यूज क्या होगा 60 प्लस माइनस 5। एज यू कैन सी एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया दोनों केस में, दोनों का ऐड हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन केस ऑफ सम इज व्हाट इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होगा। अब एक डिफरेंस वाला भी देख लेते हैं। डिफरेंस वाले के क्या लेना आपको,
डिफरेंस की अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा, वैसा ही कॉन्सेप्ट लेना हमको। तो आप इमेजिन करोगे ना टेम्परेचर मेजर है, लाइक ना किसी ने टेम्परेचर मेजर किया T1, तो थर्मामीटर से आपने टेम्परेचर मेजर किया इन बिगिनिंग इन अ पर्टिकुलर लिक्विड का जो भी है या वाटर का, तो वो था 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस ले लिया आपने। एंड T2 इज इक्वल टू, या ये T इनिशियल है, इट्स इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। एंड फाइनल टेम्परेचर इज व्हाट 120 डिग्री प्लस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट राइज इन टेम्परेचर, फाइंड आउट राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, सो क्या हो गया, अब सिंपल सा है ना कि ये होगा डेल्टा टी है ना, राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या है 120 प्लस माइनस 4 है, माइनस टी आई क्या है 40 प्लस माइनस 2 है। अब अगर आपको डायरेक्टली पता तो ठीक है, तो हम प्रॉपर ना 120 ट्रू वैल्यूज को माइनस कर दिया, ये क्या प्लस माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये प्लस माइनस 4 है, और ये एब्सोल्यूट है, ये क्या होगा ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 80, यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या होगा ये 80 प्लस 6, करेक्ट, प्लस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। So this is the rise in temperature. So as you can see in this case also, the maximum possible error in case of difference is what? The sum of absolute errors. आप absolute errors को ऐड करोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो होगा maximum difference in error या maximum value of error. So आपको क्या करना है, absolute errors को ऐड कर दो, आपको maximum error की वैल्यू मिल जाएगी sum and difference के केस में। अब हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का क्राइटेरिया, अच्छा एक और चीज समझ लेना आप जरा कि समझो कि अगर मेरे पास वैल्यू a है तो प्लस माइनस a डेल्टा a है, तो अगर मैंने डेल्टा a अपॉन a ले लिया ना तो ये क्या होगा इट्स वेरी स्मॉल, समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे कि आप मान लो कि वैल्यू 0.1 है और वैसे कोई वैल्यू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या होगा 0.01, तो दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होते हैं तो क्वांटिटी और भी स्मॉल हो जाएगा। या मान लो 0.1 है फिर क्या 0.2 ले लिया तो भी क्या होगा 0.02 होगा, तो भी तो क्वांटिटी और स्मॉल होगी ना, मतलब इसके कंपेयर में तो नहीं है लेकिन कंपेरेटिवली इंडिविजुअली इफ यू कंसीडर इन कंपेयर टू द इंडिविजुअल वैल्यूज वैल्यू विल बी मोर स्मॉलर। तो डेल्टा a अपॉन a ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर, इट्स व्हाट फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। ये वैल्यूज क्या होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो अगर दो फ्रैक्शनल एरर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो। अभी हम ले रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए आप ले लो कि कोई अगर ये मेजर वैल्यू का प्रोडक्ट z है और मेजर वैल्यू a और b हमने लिया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या होता है इनको हम रिप्रेजेंट करते हो इस टर्म में, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर वैल्यू इनटू ये हो गया b प्लस माइनस देन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर वैल्यू। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी तो हम राइट साइड की चीजों को फोकस करते हैं। मल्टीप्लाई कर लो, a विल मल्टीप्लाई विद b, विल मल्टीप्लाई विद डेल्टा b, सो a इंटू b हो गया, ठीक है। नाउ a अगर इसको मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस होगा a इंटू डेल्टा b, ठीक है। अब आगे बढ़ते प्लस में, अब डेल्टा a है b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू डेल्टा b हो गया, डेल्टा a हो गया, ठीक है। अब क्या होगा डेल्टा a विल मल्टीप्लाई विद दिस, तो प्लस माइनस विल मल्टीप्लाई विद, तो ये साइन तो प्लस माइनस ही रहेगा, तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो गया, ठीक है। पहले हम लोग राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद, तो ये हो गया आपका कंडीशन, बराबर। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो z की वैल्यू वो क्या है, z की वैल्यू व्हाट a इंटू b, ये क्या प्लस माइनस डेल्टा z, करेक्ट। इसको आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या बोल रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय ए बी, ये जो कंडीशन है उसे डिवाइड कर दो, तो ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा
ये होगा ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए बी, करेक्ट, इज इक्वल टू ए है तो ए बी है अपॉन ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, देन प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए बी, देन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। देखते हैं ये कैंसिलेशन होकर 1 हो जाएगा आपस में, तो 1 प्लस माइनस ये डेल्टा जेड है। यहां पे ये जो ए बी की वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड लिख सकते हैं, करेक्ट ना। और ये क्या होगा इक्वल टू ये वो 1 हो गया प्लस माइनस यहाँ पे ए कैंसिल हो गया तो क्या होगा डेल्टा बी अपॉन बी, फिर क्या हो गया प्लस माइनस यहाँ का बी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए ये प्लस माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, या नेगलेक्ट कर दोगे और मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाई लेते, कोई इशू नहीं। डेल्टा ए अपॉन ए ये फ्रैक्शनल एरर होगा ए का, और डेल्टा बी अपॉन बी ये फ्रैक्शनल एरर होगा बी का, ठीक है। सो अब अगर आप मैथमेटिकली अगर नोटिस करोगे तो क्या होगा, ये जो 1 की वैल्यू है ना, दिस 1 की वैल्यू विल कैंसिल, क्योंकि अगर ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1, तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ये प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। फिर क्या प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो क्या होता है यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर सॉरी फ्रैक्शनल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज वेरी स्मॉल, ये पॉइंट बहुत स्मॉल हो जाएगा ना, वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा एंड नेग्लेक्टेड, वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया, वो नेग्लेक्ट हो गया था प्लस माइनस। तब अगर उसको अरेंज करना है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस हमने लिया डेल्टा जेड अपॉन जेड, अब इधर प्लस माइनस को कॉमन ले लो आप ए की वैल्यू को पहले लिख लो, कोई इशू नहीं है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फाइनली प्लस माइनस को भी हटा दो आप, तो क्या होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सो ये क्या कहना चाहता है कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज, तो जो उनका फ्रैक्शनल एरर होगा ना, फ्रैक्शनल एरर जो होगा ना, उसका सम आपको देगा मैक्सिमम एरर की वैल्यू। सो द मैक्सिमम एरर इन केस ऑफ प्रोडक्ट इज दिस सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स और रिलेटिव एरर्स। तो अब इसका एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं हम, तो थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने क्या मेंशन किया है कि देयर इज अ करंट है ना, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड मैं ले रहा हूं ताकि हमको समझ में आए कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्होंने बताया कि आई इज इक्वल टू इन्होंने बोला है 20 प्लस माइनस एक है 0.2 एम्पियर, ये करंट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड आर इज इक्वल टू ये क्या है, ये है आपका वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.5 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन दिस V पोटेंशियल में। फॉर्मूला क्या होता है इसका पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये वही है ना जो फाइनल फॉर्मूला। अगर A और B मल्टीप्लाइड था तो क्या था, तो जैसे V का ले रहे तो V का क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल्टा I अपॉन I प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन R। सो डेल्टा I, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर I, ये एब्सोल्यूट एरर है ना, वो 0.2 होगा, 0.2 इज द एब्सोल्यूट एरर। एंड व्हाट्स द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, व्हाट्स द ट्रू वैल्यू 20, then plus what's the absolute error in R, 0.5, and what's the true value in R, that's 10. So actual में समझने के हिसाब से देखना तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो ना, I plus डेल्टा I, करेक्ट।
Now we imagine this r, it's r plus delta r. Accordingly we get the answer. So अब क्या करना है, इसको कैंसिलेशन करके देखो, ये 10 हो गया, ये 0.1. This is what 5 1 and 5 2 जा, तो ये वैल्यू क्या होगा 0.01 हो गया, प्लस ये क्या होगा 0.05. करेक्ट. फाइनली ये एरर कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 0.06. ये है फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू. गॉट इट. अब इसमें एक छोटा सा और हम ना इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, होता है परसेंटेज एरर. अगर उन्होंने बोला परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है कि रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो अगर डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 ले लिया हमने, फिर क्या होगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 ले लिया हमने, प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 ले लिया हमने, या राइट साइड में आप मॉडिफाई कर सकते हो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b टोटल का 100. तो आपको कौन सा एरर मिल जाएगा, परसेंटेज एरर. मान लो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं देखूं यहाँ पे, इफ आई से अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, तो मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को रख कर देता हूं. दिस इज नॉट डेटा. सो कंडीशन सिंपल है, परसेंटेज एरर इन v, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100. तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा i अपॉन i प्लस डेल्टा r अपॉन r टोटल इंटू 100. तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ना, अभी कितना था 0.06 इंटू व्हाट 100. टोटल वैल्यू कितना होगा 6%. तो 6% का एरर होगा जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, है ना. मल्टीप्लाई दिस इट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला इटसेल्फ. गॉट इट. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. सो अब क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स. So I hope ना you are understanding these things. You people are understanding these things. These things are very simple. इतना complicated नहीं है. एग्जाम में डेरिवेशन पूछ सकते हैं, तो इसका डेरिवेशन आ सकता है, प्लस इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है. न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो कहीं कहीं पे पूछते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते, तो दैट डिपेंड्स. बट न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस. अब हम देखते हैं क्वेश्चन के लिए. सो ये वैल्यू है हमारा z इज इक्वल टू a अपॉन b है, ठीक है. अब उसको हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, देन a ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर. अपन b के लिए लिख लेते हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. अब क्या डिनोमिनेटर में b चाहिए, तो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने वैसे रहने दिया. तो आप क्या करते हो, यहाँ पे a है, ये प्लस माइनस है, ये डेल्टा a है. आपको क्या है, a कॉमन लेना, तो हमने a को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपॉन ये b है प्लस माइनस डेल्टा b. हमको b कॉमन लेना, तो b को प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई. ये स्टेप अगर आप नहीं भी दिखाते तो भी चलेगा. व्हाट टू डू नाउ, अब आप a को कॉमन ले लेते हो न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, ये 1 हो गया, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, है ना. a और a को कॉमन ले लिया. डिनोमिनेटर में क्या है, ये b है, ये क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b है ये. गॉट इट. अब क्या होता है, हमने क्या किया, यहाँ पे a अपॉन b लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ले लिया इनटू, अब यहाँ पे ये वैल्यूज नॉर्मली 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. एंड व्हाट इज हैपनिंग वो हियर, अभी तक ये वैल्यूज को आप वैसे कंटिन्यू कर लो, जब रिक्वायरमेंट होगा तब आप z की वैल्यू, जैसे कि हम ना हर बार करते थे, यहाँ पे जो z की वैल्यू है उसके कंडीशन के हिसाब से लिखते थे. यहाँ पे ये z प्लस माइनस डेल्टा z, अब यहाँ पे लिख सकते हो, तो z की वैल्यू क्या होगी, ये होगा a अपॉन b हो जाएगा एज पर क्वेश्चन, प्लस माइनस डेल्टा z. अब आपको ये जो इक्वेशन मिला है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1. तो क्या करना है, दोनों साइड में a अपॉन b से आप डिवाइड कर दो, ठीक है. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय a अपॉन b, एंड व्हाट डू वी गेट, a अपॉन b से डिवाइड करोगे तो ये a अपॉन b कैंसिल हो जाएगा, बराबर. तो ये 1 हो गया, प्लस माइनस ये क्या है डेल्टा z अपॉन, उसको डिवाइड किया आपने a अपॉन b से, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो a अपॉन b ये कैंसिल हो गया, और बाकी वैल्यूज ऐसे रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
और एक होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा P अपॉन B, ठीक है। और ये क्वांटिटी फाइनली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा Z में, कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, B का वैल्यू आल्सो यू ब्रिंग इन न्यूमरेटर, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस वन इसका पावर चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा B अपॉन B रेज टू माइनस 1। अब एक ना फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर कोई क्वांटिटी है A प्लस B, वो है रेज टू n, ये प्लस माइनस n है, प्लस माइनस n ऐसे लिखा, ठीक है। ये वैल्यू अप्रॉक्स होगी, किसके अप्रॉक्स होगी, यहां पे A है, A लिखना है, जहां B है वहां B लिखना है, जो पावर है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस साइन है तो यहां प्लस लेना है, माइनस साइन है तो माइनस लेना है। ये क्वांटिटीज का अप्रॉक्स, ये एक थ्योरम है उसके थ्रू निकालते हैं, बट अभी हमें फिजिक्स के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस इतना ही समझना है, गॉट इट। सो अब उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, तो ये क्या होगा, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z हो गया, इक्वल टू ये क्या है, 1 है प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, गॉट इट। अब माइनस को हम अंदर लेके आ रहे हैं, माइनस इज बेसिकली ना साइन आ रहा है और 1 अंदर आके कोई मतलब नहीं है ना, इट विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 है, माइनस अगर ये अंदर आया तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा, डेल्टा B अपॉन B होगा, और अब पावर में कुछ रहेगा नहीं, एज आर शोन हो। ये अब क्या करना है, ये 1 है प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z है। अब क्या करना है इसमें, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, तो ये 1 हो गया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया हमने इस क्वांटिटी से, जो होगा डेल्टा A अपॉन A हो गया, ठीक है, प्लस माइनस ना। अब क्या किया, डेल्टा B को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस डेल्टा B विल मल्टीप्लाई विद 1, तो डेल्टा B अपॉन B। अब वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। एक क्या पैटर्न है, वो पैटर्न में आ जाएगा, A एंड B के टर्म में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा B अपॉन B हो गया, ये गॉट इट। सो अब क्या होगा इस केस में, ये जो 1 की वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू के साथ में कैंसिल हो जाएगा, अगर ये साइड आया तो, बराबर, या वैसे भी मैथमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एंड देन विल मेंशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर, कौन सा फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा A अपॉन A। अच्छा, ये मैंने यहां पे ये चीज प्लस माइनस वाला तो हम इग्नोर ही कर दिए, ये प्लस माइनस और प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक्चुअली वो प्लस माइनस ही रह जाएगा, वो हिसाब से देखो। तो जैसे यहां पे मैंने क्या किया था, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करके भी कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस को भी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस प्लस होगा, वो बस ध्यान दे देना। कभी हो सकता है किसी ने मार्क्स वगैरह कट कर लिया तो देन देयर विल बी इशू, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, देन इट विल मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो प्लस माइनस माइनस प्लस, इट विल रिमेन प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस वैल्यू इज ओनली गोइंग टू चेंज, गॉट इट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर डेल्टा A एंड फ्रैक्शनल एरर्स डेल्टा A एंड डेल्टा B, डेल्टा A अपॉन A एंड डेल्टा B अपॉन B इज वेरी स्मॉल। तो बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट भी हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A माइनस प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस को कॉमन ले लो, तो यहां क्या मिला आपको, प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू, आपने इन दोनों क्वांटिटी से प्लस माइनस को कॉमन ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एडिशन वाले में सब, ये डिफरेंस वाले में क्या था ना, इस कॉन्सेप्ट को, डेल्टा A अपॉन A, ये प्लस ही रहेगा, डेल्टा B अपॉन B, ये कैंसिलेशन होगा प्लस माइनस का, तो डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। As you can see, whether you have done addition or you have done you have done multiplication, you have done this quotient, division, in both cases fractional error will add। अब इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं हम,
तो उसके एग्जांपल के लिए मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को रब कर देता हूं, ठीक है। सो क्वांटिटी z अपॉन a, z इज इक्वल टू a अपॉन b के टर्म में, तो मैं वापस ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला ले लेता हूं बिकॉज़ दैट इज द फॉर्मूला व्हिच इज नोन टू अस, करेक्ट। सो v का वैल्यू दिया इन्होंने, v का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, मान लो ये 10 है प्लस माइनस यहां पे क्या है 0.2 है, फाइन, वोल्ट, करेक्ट, या 0.1 ले लो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी वो r की है, व्हाट इज वैल्यू फॉर r, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने ले लिया 50 ओम, प्लस माइनस ये हो गया 5 ओम, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फ्रैक्शनल स्लैश ये रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर किसमें, इन आई, करंट में निकालना। फॉर्मूला देख लो क्या, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। सो डेल्टा वी का वैल्यू एज आई सेड ना, ये ट्रू वैल्यू होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू यू कैन टेक अकॉर्डिंगली। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 0.1 एंड ट्रू वैल्यू क्या है 10 है। डेल्टा आर के लिए ट्रू वैल्यू क्या है 5 है, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5 है, ट्रू वैल्यू क्या है 50 है। तो ये जो वैल्यू है तो 0.01 हो गया, ये 1/10 है तो ये क्या होगा 0.1, तो ये क्या होगा 0.11, करेक्ट। ये हो गया आपका वैल्यू फॉर फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, फाइन। एज वी हैव डन परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का सेम कॉन्सेप्ट, करेक्ट। क्या है परसेंटेज एरर का, डेल्टा आई अपॉन आई हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर एंड टोटल वैल्यू इंटू 100। तो कितना होगा ये वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 0.11 इंटू 100, तो क्या होगा ये 11% आ जाएगा। गॉट इट। सो सम में क्या होता था, सम में जो एब्सोल्यूट एरर्स होते थे वो ऐड होकर मैक्सिमम एरर देता था, डिफरेंस में भी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होकर आपको मैक्सिमम एरर देते थे। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन में क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर ऐड होकर आपको मैक्सिमम एरर देंगे। फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर होगा सिर्फ डेल्टा, डेल्टा वाला टर्म सिर्फ एब्सोल्यूट एरर है, बट डेल्टा अपॉन ट्रू वैल्यू विल गिव यू फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाला पॉइंट, द पार्ट। सो जैसा हमारे बार z ले रहे हैं फाइनल वैल्यू, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे होगा a रेज टू n ले लो आप, करेक्ट। बहुत सारे मेथड्स है, वैसे मैं जस्ट एक मेथड फॉलो करूंगा। तो ये क्या, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, देन a प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है, हमको a रेज टू n बाहर चाहिए राइट साइड में, जैसा हम हर बार वैसे ही करें ना। मल्टीप्लीकेशन में a इंटू b बाहर चाहिए और एडिशन में a प्लस b, सब डिफरेंस में a माइनस b एंड डिवीजन में सेम थिंग। तो वी हैव टू टेक a रेज टू n बाहर, तो क्या करना पड़ेगा, द सेम थिंग ना, a प्लस माइनस दिस डेल्टा a यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद a, करेक्ट, रेज टू n। तो व्हेन यू आर टेकिंग a आउटसाइड देन व्हाट विल हैपन, पावर के साथ में a कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या होगा, दिस a यू हैव टेकन आउट, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू n। गॉट इट। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, एज आई सेड ये जो वैल्यूज है, अब देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, क्या होगा, इसको आप z ले लो तो भी चलेगा, तो ये z है प्लस माइनस डेल्टा z है। आप वही काम ना पहले भी कर सकते, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। सो अभी क्या कह रहे हैं कि अब इस वैल्यू को क्या करो, वहां पे z ले लिया आपने, तो ये z हो गया प्लस माइनस डेल्टा z हो गया, ठीक है। ये तो वैसे हमने कंटिन्यू कर लिया इसको, यहाँ पे हमने ये ले लिया a z ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू n, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को z से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, z से डिवाइड करोगे तो चलो ये z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू z इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू n अपॉन क्या होगा, ये z हो गया, तो z z कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, सो आपको वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू n। अब क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे,
पावर की वैल्यू अंदर आ जाएगी, साइन है तो उसके साथ में आ जाएगा, बट साइन नहीं है फॉर्चुनेटली। अच्छा ये कैंसिलेशन के बाद ये 1 होगा ना, ये तो 1 होगा, वो मैं छोड़ नहीं सकते ना, 1 प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में एन आएगा, देन क्या डेल्टा ए अपॉन ए, इट्स अप्रॉक्स वैल्यू, सो यू कैन मेंशन कि 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए रेज टू एन इज अप्रॉक्स टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब क्या हो गया कि वैसे अगर ब्रैकेट को हटा देंगे तो दिस 1 and 1 विल कैंसल आउट, सो व्हाट आर लेफ्ट, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इनटू डेल्टा ए अपॉन ए, देयरफॉर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू व्हाट, एन इनटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो मैक्सिमम एरर ड्यूरिंग द पावर इज व्हाट, इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर फॉर द क्वांटिटी इनटू द पावर्स ऑफ दैट क्वांटिटी। तो जो भी पावर होगा उसकी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द फ्रैक्शनल एरर फॉर दैट क्वांटिटी। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, कोई क्वांटिटी आप मान लो ए ही है, ए की वैल्यू है 40 है, प्लस माइनस क्या है 2 है यूनिट, अभी कोई भी यूनिट हो सकता है, हमें पता नहीं है, बट फिर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, a रेज टू 4 है, ठीक है, x इज इक्वल टू a रेज टू 4 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन x, तो सेम थिंग, सो फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a, बट क्या होगा, जो पावर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट, देख लेते हैं डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू क्या है, ये a है ट्रू वैल्यू एंड इट्स एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू क्या 40 है, इंटू एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू 4 है, तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 2 8, 8 5 40, 0.2, ये फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू होगी, करेक्ट। मान लो परसेंटेज एरर पूछा होता तो परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट सिंपल, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो देख लेते हैं एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 100, तो फाइनली कितना हो जाएगा 20%। सो आज हमने बेसिकली लर्न किया द पैटर्न टू ऐड और टू गेट द मैक्सिमम एरर फ्रॉम ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। सो in next class we are going to solve numerical based on these concepts. So I hope whatever I taught you people understood. Thank you very much.